The moment we do this, next thing we basically have to find this particular formula. What is the value of x and y? Okay. See, what we can do is, uh, it's a case of multiple proportion. Multiple proportion में ये होता है कि one of the element of one of the weight of one of the elements in the two compounds has to be made equal. ठीक है, such that the weight of other component will become an integral or whole number multiple of the other. Are we getting this point? किसी एक कंपोनेंट का वेट जो है उसको हम लोग बराबर कर लेंगे, तो दूसरा वाला का वेट जो होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन सम होल नंबर रेशियो. इज इट ओके? Yes, sir. सो वी हैव मतलब 4 ऑप्शंस. क्या क्या ऑप्शंस है? या तो इसको 31.6 बना लें और उसके अकॉर्डिंगली मेटल का वेट कैलकुलेट कर लें, या फिर यहां पर इसके वेट को 48 एलिवेट कर लें और उसके अकॉर्डिंगली इसका वेट निकाल लें, so that we can have metal का weight ratio in two compounds. या फिर the other way round is, instead of playing it on oxygen we can play it on metal itself. इसको 52 रहने दें और इसको 68 से 52 हम ला दें. ठीक है, या फिर इसको 52 से 68 लेते जाएं और अकॉर्डिंगली वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लें और इन दोनों के वेट को कंपेयर कर लें. ठीक है, so we have 4 ways to do it. We can opt for any one of them as per our wish. Generally values को decrease करने के बदले increase करना is something which I prefer. Due to which I will actually increase this number. I'll multiply entire thing by 48 by 31.6, the entire equation. ठीक है, तो this equation will turn out to be, this will become equal to 100 into 48 by 31.6 gram of metal oxide will have 68.4 into 48 by 31.6 gram of metal, which is equal to 68.4 into 48 . We are doing the I problem number I. If you have not understood it, we can restart it. मतलब ब्रेक के पहले ये कराया था. Think somebody else, or was it you? अच्छा. Okay, so let me continue. 68.4 into 48 divided by, divide this number by 31.6. This is making it metal का weight जो है that is coming out to be 103.9 gram. ठीक है, and obviously oxygen will become 31.6 multiplied by 48 divided by 31.6, कैंसिल होकर के 48 ग्राम हो जाएगा. ठीक है, now weight of oxygen in both the compounds are same. ठीक है, and weight of metal in the two compounds are in ratio of 2:1. यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो atoms of metal will also decrease.
Is it okay? And it will become half provided अगर y वेट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सेम किया है मैंने, तो यहाँ पर जितने एटम्स ऑक्सीजन के हैं उतने ही एटम्स यहाँ पर ऑक्सीजन के रहेंगे. इज इट ओके? Therefore y will become equal to 3 and x जितने एटम्स ऑक्सीजन मेटल के यहाँ पे हैं इस केस में उसके हाफ यहाँ पर रहेंगे. 2:1 का रेशियो आ रहा है वेट का, तो x will become equal to 1. Therefore the formula will become MO3. Is it okay? Yes, sir. Understood. Okay. ये एक तरीका हुआ करने का, मतलब इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. एक और भी तरीका है. See, there are two unknowns. ठीक है, and we have to solve for them. Two equations also we have. पहले वाले में फॉर्मूला क्या है? M2O3 है. Let us suppose the molecular या weight of atomic weight of metal is M. ठीक है, तो M2O3 में total weight of the substance will become what? 2M plus 48, right? इसके दो एटम्स हैं तो 2M हो गया. 16 into 3 48, that is the molecular weight. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगा? 48 upon 2M plus 48 is equal to 31.6%. That is what given, right? इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. सॉरी, दिस डिवाइडेड बाय 100% है ना, तो दिस डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा. ठीक है, so the number will become 48 into 100 by 31.6 is equal to 2M plus 48, or we can write it as M plus 24 is equal to 24 into 100 by 31.6. So 24 into 100 divided by 31.6, this is making it 75.94, that is approximately 76 ले सकते हैं. M plus 24, that implies M is equal to 52. Is it okay? ये क्लियर है? Yes, sir. In next thing it is given that, or let us suppose formula for the second compound is MxO3, और उससे x की वैल्यू हमको निकालनी है. अब इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? 48%. 48 by 100, and weight of oxygen is again 48 divided by 2x, sorry, not 2x, 52x. ठीक है, 52 is the molecular weight and number of atoms x है, तो 52x plus 48. Is it okay? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. That implies 48 plus 52x is equal to 100, or 52x is equal to 52 implies x is equal to 1. Is it okay? So Yes, sir. Understood. we have these two ways to solve it.
ठीक है। सर एक बार स्क्रीन को मिनिमाइज करना। स्क्रीन को मिनिमाइज करूं, छोटा करना है ना, दिस इज व्हाट यू वांट। हाँ सर। ओके सर। ओके, सर क्वेश्चन नंबर वो लास्ट क्वेश्चन क्या था जे, उसके अंदर वो रेशियो कैसा है वो लास्ट। जे के अंदर रेशियो कैसे आया? सिंपल सा चीज है, कॉपर दो कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, दो ऑक्साइड, और दोनों में अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो सेम है, या सेम अमाउंट ऑफ कॉपर जो है वो ट्वाइस एज मच ऑफ ऑक्सीजन चाहिए टू फॉर्म फर्स्ट ऑक्साइड कंपेयर टू द सेकेंड ऑक्साइड। मतलब सेकेंड ऑक्साइड में अगर एक्स का ऑक्सीजन का वेट एक्स है, तो फर्स्ट कंपाउंड में ऑक्सीजन का वेट कितना रहेगा? 2x। ठीक है, फिर दूसरे केस में जितना ऑक्सीजन चाहिए उसके डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए पहले वाले केस में, और इन सब से ऑक्सीजन का जो वेट रिएक्ट कर रहा है दैट इज सेम। मतलब इसका 1 ग्राम इसके अगर 5 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है तो इसके 10 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, राइट? दैट इज व्हाट रिटन। आर वी गेटिंग दिस सेंटेंस? यस सर। और ये कब पॉसिबल है? जब नंबर काउंट ऑफ एटम्स जो होगा वो दोनों कंपाउंड में कॉपर का सेम नंबर काउंट रहेगा और ऑक्सीजन का नंबर काउंट 1:2 के रेशियो में रहे, राइट? एक में CuO2 रहे और दूसरे में CuO रहे, तभी तो पॉसिबल है ना कि सेम अमाउंट ऑफ कॉपर पहले वाले कंपाउंड में 2x अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और दूसरे वाले कंपाउंड में x अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ सर। आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? If it is understood, then there is no issue. Valency for this one will be what? +4 or 4 simply. और इसके लिए वैलेंसी 2 रहेगी, द रेशियो ऑफ वैलेंसी इज 2:1। इज इट ओके? हेलो, इज इट मेकिंग सेंस? Yes, sir. Okay, let us move ahead. See, the next thing in line is what we need to know is there are certain measurements which we need to understand in pure substances, that is elements का mixture या फिर compounds। ठीक है, एलिमेंट्स के मिक्सचर या फिर कंपाउंड्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह का बेसिक जो होता है दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, दिस इज आवर थर्ड सेगमेंट, कैलकुलेशंस इन
प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और अभी like we were already discussing this, so the first thing in it is mass percent and mole percent understanding, including mole fraction. Mole fraction. See, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट ले लो, let us take any two elements, you can name them, suppose कुछ भी ले लो, एल्यूमिनियम ले लो और कार्बन ले लो, ठीक है, इनको एक तो हम अगेन परसेंटेज अगर निकालना है, मास परसेंट निकालना है, तो मिक्सचर जो इनका बनाना है हमको, वो या तो हम इनके वेट के रेशियो में ही मिक्स करेंगे, अगर वेट के रेशियो में मिक्स कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा, इनको मोल्स के रेशियो में या एटम काउंट के रेशियो में भी इनको मिक्स कर सकते हैं, लाइक इसके एटम्स ट्वाइस इन नंबर हैं कंपेयर टू इसके, ऐसे सिनारियो में व्हाट विल बी द वेट परसेंटेज, ये अगर कैलकुलेट करना है तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से मैं इसके नंबर को, मोलर नंबर को या एटॉमिक वेट से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर लूंगा, सो 2 into 27 प्लस 12 हो जाएगा, दैट विल मेक इट टू बी 66। आउट ऑफ 66, 54 इज एल्यूमिनियम, so I'll make it like this, and percentage of aluminium क्या हो जाएगा, AL percentage by weight क्या हो जाएगा, this will become 54 by 66 into 100, और this will become 27 by 33 into 100, 33 है तो 3 हो जाएगा, 27 into 3 is approximately 81 आएगा, 81 या 82 रहेगा, is it okay? अगर वेट परसेंट दिया हुआ है तब तो कुछ करना नहीं है, अगर नंबर ऑफ एटम्स का काउंट दिया हुआ है या मोल का नंबर दिया हुआ है, देन वी विल हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। इट्स Yes, 80 sir. 81.81 81.8 रख सकते हैं हम लोग, इट्स गोइंग टू बी अ रिकरिंग नंबर, सो 80 81.8 हम लोग सेफली रख सकते हैं इसको। एंड कार्बन का परसेंटेज क्या रहेगा, इट विल बिकम 12 by 66 into 100, that is almost equal to 18.8%। तो इन दोनों का वेट परसेंट आ गया, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। अगर एलिमेंट्स का मिक्सचर ना हो करके, एलिमेंट का मिक्सचर ना हो करके, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट ना हो करके कंपाउंड है, ठीक है, इट कैन बी अ कंपाउंड एज वेल, फॉर एग्जांपल H2SO4, ठीक है, H2SO4 में वेट परसेंट या मोल परसेंट कैसे निकालेंगे, तो मोल परसेंट तो इजी है, हाइड्रोजन का मोल परसेंट कितना होगा, हाइड्रोजन के दो एटम है, सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन का 4 एटम है, तो हाइड्रोजन का मोल परसेंट जो होगा, मोल परसेंट दैट विल बी इक्वल टू 2/7 into 100, दो एटम इसके, एक एटम इसका, 4 एटम इसका, तो 2/7, 4 + 1 7 plus 4 + 1 5 plus 2 7, 2/7 into 100, this will make it somewhere close to 28.28% या 28.3%। एक सेकेंड रुक जाओ, 7×2 = 14, 20 56 56 4 7 7 40 28.6 बोल सकते हैं, so it is 28.6%। सल्फर का मोल परसेंट कितना रहेगा, this will become 1/7 into 100, that is
अप्रोक्सीमेटली 14.3% हो जाएगा, और रेस्ट क्या रहेगा, ऑक्सीजन का परसेंट रहेगा। इन दोनों को ऐड करके 100 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वी आर गोइंग टू गेट दैट। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है। मोल परसेंटेज नॉट मोल 18.2 परसेंटेज होगा ना, किसका? कार्बन का 18.2 होगा ना। हाँ 18.2 रहेगा, गलती से लिख दिया 18.8। इन दोनों का सम 100 होना चाहिए ना, दिस टुगेदर शुड बी 100। ठीक है, दो ही कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट का सम 100 होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी इसका इसका और तीसरे ऑक्सीजन का सम जो है वो 100 होना चाहिए। अगर यूनिटरी मेथड से करके देखोगे ना तो 4/7 into 100, this will jump off to 5, 35, 45, 49, 50, 14। ठीक है, 14 को रफली मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं, और यहाँ पर वो बाकी की चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है, तो 57.1 इट इज गोइंग टू बी, ऑक्सीजन का परसेंट इज गोइंग टू बी व्हाट? ऑक्सीजन मोल परसेंटेज, मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, mole percent of O is 57.1%. Is it okay? Hello. Hello. Yes. Did we understood till this point? Yes, sir. Understood. Okay. Next thing H2SO4 में percentage by mass अगर हम देखते हैं, if we try to look at percentage by mass, it's going to be equal to H2SO4 में percentage by weight. The percentage of H will be equal to how much? The total weight of this molecule is 98 AMU, out of which hydrogen is 2 units. So 2 into 98 into 100 हो जाएगा, approximately 2 point something मेरी 04. 2.04. 2.04. It's 2.04%. Sulfur is going to be, percentage of sulfur will be 32 by 98 into 100, that is equal to, sorry क्या बोल रहे हो? 1.0. Oh. 31.63, and then percentage of oxygen हो जाएगा 64 by 98 into 100, which is almost 63.26%. Sir, 67.26. Yeah, 64 Sir, 67.26. 65 point, नहीं फिर तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. This is coming out to be 65.31%. एक सेकेंड, 32 into 100 divided by 98. This is 32.65. ठीक है, this is how we calculate the weight percent.
ठीक है, या वेट परसेंट, मतलब वेट परसेंट एलिमेंट्स का इसी तरीके से निकालते हैं इन अ कंपाउंड। और ये शायद आप लोगों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर पढ़ा होगा तो यू माइट बी अवेयर ऑफ इट। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डील इनटू इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट हाँ उसके पहले मोल फ्रैक्शन इज समथिंग जो मैं बता दूं आप लोगों को। ये थोड़े टाइम बाद भी हम लोगों को यूज, मतलब ये तो कंटिन्यूअसली यूज ही करना है हम लोगों को। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो ऑफ या proportionate presence of proportionate presence of a particular element or compound in a system। ठीक है, अब ये मोल फ्रैक्शन और मोल परसेंट जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। मोल परसेंट जो था ना वो मोल फ्रैक्शन से ही लिया जाता है। मोल फ्रैक्शन इंटू 100, मोल फ्रैक्शन इंटू 100 इज इक्वल टू मोल परसेंट। मोल परसेंट जनरली हम लोगों को कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलता है टेक्स्ट में। इट इज मोल फ्रैक्शन विच इज इन मोर यूज। एम आई मेकिंग सेंस? मोल फ्रैक्शन इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू मोस्टली यूज। कभी कुछ कंफ्यूज करना होगा तो फिर मे बी मोल परसेंट जैसा एक वर्ड क्वाइन करके या मोल परसेंट जैसा क्वाइंड वर्ड आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाए, जिसकी रिलेटिव प्रेजेंस जो है कहीं भी टेक्स्ट में आपको मिलेगा नहीं। इज इट ओके? ये सिंपल लॉजिक वाली चीज है, तो हर चीज जरूरी नहीं है कि लिखा ही रहे बुक में। एम आई मेकिंग सेंस? So if we are going to look at H2SO4 का Yes, mole sir. fraction, H2SO4 में what is going to be the mole fraction of H2, H, S and O? H के लिए mole fraction will be 2/7, इसके लिए mole fraction 1/7 और इसके लिए mole fraction क्या होगा 4/7। Making sense? The next thing is empirical formula, chemical formula and average molecular weight, including percentage of dissociation. So we are now going to look into, first of all, empirical formula. What does it mean? Then I'll going to describe you the chemical formula. हाँ, empirical formula पढ़ा है हम लोगों ने, सुना है इसके बारे में? हाँ सर। वेरी गुड। क्या होता है? Yes, sir. सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ और सिंपलेस्ट तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट? या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ atoms present in a molecule. Is it right? यस सर। ठीक है। Simplest whole number ratio of elements present in a
molecule. The second thing is empirical formula से दूसरा information क्या मिलेगा? Will it give us all the information about what the elements are present, right? Information about whereas it does not tell us anything about so empirical formula is something which is which represents simplest whole number ratio of atoms present in the molecule, gives information about different elements present in the molecule. It does not inform us about pattern pattern or linkages of present between atoms. ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से हमको ये आइडिया नहीं मिलता है. सिर्फ ये दोनों आइडियाज मिलते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? What do we understand by molecular formula? Is it clear? ये तीनों पॉइंट्स हेलो
Yes, sir. इज दिस 3 पॉइंट्स क्लियर? ये पॉइंट्स ही बेसिकली है, आई बिलीव आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज समथिंग जिसके ऊपर मुझे थोड़ा सा फोकस करना होगा। सी, H2SO4 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम H2SO4 ही लिखते हैं। वी कैन नॉट राइट इट दैट SH2O4, राइट? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा, तो इसमें भी एटम्स का रिप्रेजेंटेशन एग्जैक्टली सेम है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि H जो है वो O के साथ लिंक तो है, लेकिन ये O जो है वो S के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, ठीक है? और सल्फेट को नोट करने के लिए वी ऑलवेज कीप SO. S is directly bonded to O and S is not directly bonded to H. It is H which is bonded to O, ठीक है? So this is a notation जिसको कि हमने यूज किया है, जिसमें सल्फेट को हम ये एक साथ कंबाइंड है तो इसको एक साथ रखते हैं, एंड देन फ्लैंकिंग जो होती है वो H की होती है, 2 H जुड़ते हैं इससे, and it looks something like this. ठीक है? और ये एक एंटिटी होती है यहाँ पर, and this is this is one entity, the entire thing, and the second thing is 2 hydrogens being attached to different oxygens of SO4. ठीक है? वैसे in order to establish or investigate this formula, molecular formula, we require multiple things. ठीक है? So in order to inquire or establish molecular formula, we have to perform multiple tasks. ठीक है? What are those tasks going to be? The one among them is, the first among them is empirical formula analysis. ठीक है? The second one is molecular weight determination. ये दोनों को यूज करके फाइनली बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिडक्शन, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला के पहले भी एक स्टेप होता है जो मैं मिस कर गया लिखना. I'll write it. The first step is elemental analysis. Is it okay? Elemental analysis forms the part of practical chemistry. तो सबसे पहले कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और कितना परसेंट में प्रेजेंट है ये हम पता करते हैं. उसके बेसिस पे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं. एम्पेरिकल फॉर्मूला से के बाद मॉलिक्यूलर वेट उसका डिटरमाइन करते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट और एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला करके बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करते हैं.
उसके बाद फिफ्थ वर्क जो होता है हमारा वो होता है टेस्ट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप्स स्लैश लिगेंड्स ठीक है। और ये आने के बाद फिर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्टैब्लिश करते हैं, स्ट्रक्चरल लिंकेजेस, हाँ established, एंड फिर हमको ये 6 स्टेप करने के बाद लास्ट में हमको मिल जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द फाइनल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर बट अभी हम लोग किस में चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन 5 एंड 6, ये बाद में। अभी हम लोग मेजरली इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन का प्रोसेस क्या होता है ये मैं बता दूंगा आप लोगों को। ये मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन जो होता है ये टास्क हम लोग अकॉम्प्लिश करेंगे, एक चैप्टर आएगा सॉल्यूशंस करके, ठीक है। उसमें 4 चीजें होती हैं सॉल्यूशंस चैप्टर में। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग मॉलिक्यूलर वेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चेंज इन वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point, and the fourth thing is osmotic pressure. Sir, So please will you explain again, sir? My connection very poor. हाँ, no, I was just explaining कि ये molecular weight determination का principle जो है ना, this is something which we are going to learn not in this chapter but in a chapter named solutions and colligative properties in class 12, ठीक है। तो ये Sir, क्लास 12 molecular weight we find now. क्या क्या हम लोग molecular weight तो find कर सकते हैं ना, लेकिन कैसे? मॉलिक्यूलर मतलब अगर फॉर्मूला कोई भी पता molecule रहेगा है तो तो हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता रहेगा तब तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही अगर पता नहीं है तब कैसे करोगे? okay sir. ठीक है। और ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ दे आर डिप्लॉयड टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट इन एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉट इन प्रेजेंस ऑफ इट। प्रेजेंस में तो करने के लिए ऑब्वियसली एटॉमिक वेट को ऐड कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाइड कर लेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट इट डायरेक्टली, नो इश्यूज। बट अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालना है तो उसके लिए पहले मॉलिक्यूलर वेट का पता होना चाहिए, एग्जैक्टली नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कितने कितने हैं ये हमको पता होना चाहिए, और उसके बाद हम लोग आगे की चीजें ग्रुप्स कौन से प्रेजेंट है और लिंकिंग कैसी है ये डिटरमाइन करके फिर फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रपोज करते हैं। इज इट ओके? तो Yes, sir. यहाँ पर व्हाट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन फॉर दिस टॉपिक, वी आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट। ठीक है, this is something where we are more interested or keen to know. ठीक है, और इसके साथ साथ मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डायरेक्ट डिटर्मिनेशन तो नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन में अपार्ट फ्रॉम दीज एक दो चीजें और भी आती हैं, जैसे वेपर डेंसिटी अगर हमको पता चल जाता है तो मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा ना, Yes, राइट? sir. और वेपर डेंसिटी के बदले अगर एक्चुअल डेंसिटी पता चल जाए तब सर तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके साथ वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम दिया होना चाहिए या फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया होना चाहिए, यस सर। या फिर अगर गैसेस हैं तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, RT बाई PM, या M इज इक्वल टू RT बाई P इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स हैं, ये दो स्पेशल मेथड्स हैं जो कि आपको यूज करने होंगे मेनी अ टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए, बट ये दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चारों हैं। हावेवर इनको यूज करके अभी तक क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, एडवांस में भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करने के लिए। नहीं सॉरी, नहीं पूछा है ऐसा नहीं है, एक बार पूछा है बट एंड टू एंड नहीं पूछा है, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करिए और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करके बेसिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एस्टेब्लिश करिए, ऐसा नहीं किया था उसने एक्चुअली। एम्पेरिकल फॉर्मूला काइंड ऑफ जो था ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया था, वो निकालना नहीं था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ था, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट निकालना था इन चारों मेथड में से किसी एक को यूज करके, और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देना था। मतलब ये भी डिटरमाइन करना था, ऐसा नहीं था, मतलब परसेंटेज वगैरह से ये जो डिटरमाइन आप लोग करते हो वहां से यहाँ तक का प्रॉब्लम पूरा नहीं दिया हुआ है कभी भी। एक बार सिर्फ ऐसा दिया हुआ है जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में, इनको यूज करके इन चारों में से किसी एक को यूज करके मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर लेना था और उसके बेसिस पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देना था, ये काम करना था हमको। आई थिंक 2001 के पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्राइमरली जो फोकस करने वाला हूँ वो इसके ऊपर फोकस करूंगा, ये दोनों मेथड्स को यूज करके, और फिर ये मेरा फोकस एरिया होगा। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिगार्डिंग एक छोटी सी चीज और मैं बोलूंगा। Okay. Okay. More than one compound may have
may have same empirical formula but not molecular formula. Is it okay? There can be compounds, multiple compounds, which can have same empirical formula, but they will obviously have different molecular formulas. Is it okay? We can have examples. पहला एग्जाम्पल CH का होता है. दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है. इसके करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज जो होते हैं MF, दे आर दीज टू. वन इज C2H2, that is ethyne. ठीक है. और दूसरा जो होता है दैट इज C6H6 बेंजीन. ठीक है. Apart from it, there are others also. There is CH2O या इसको H2CO भी बोलते हैं. ये फॉर्मूला जो है इट इज शेयर्ड बाय 3 डिफरेंट कंपाउंड्स. ठीक है. पहला जो मॉलिक्यूल होता है इसका वो ये होता है HCHO. दिस इज फॉर्मलडिहाइड. ठीक है. The second one is going to be acetic acid. The formula is CH3 COOH. It looks like CH3 C double bond O single bond OH. Is it okay? Sir, please will you show the above statement? हाँ बिल्कुल. And the third one is going to be, एक सेकेंड रुक जाओ मैं दिखाता हूँ. Third one is glucose. स्ट्रक्चरल पैटर्न इसका नहीं बना रहा हूँ, लंबा चौड़ा होता है. C6H12O6. Yes, sir, done. Okay. So these are two like common examples which we have. These are not, I mean, it is not limited to this only. There are many more. There are many more which can have same empirical formula but different structural formula or different molecular formula or representing different molecules altogether. ठीक है. ये नहीं, एक और भी आ जाएगा. अच्छा इसका नहीं आएगा, दूसरे का आएगा.
पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सी एक्चुअली एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 जो है ना, this can be shared by C2H4 ethane and also by C4H8 cyclobutane। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हर कार्बन दो दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा। They are going to share the same formula. So we can have multiple such examples, but these few are sufficient to solve, I mean, make us understand what am I trying to tell you guys. ठीक है, okay. The next task is see, actually हम लोगों को एलिमेंटल एनालिसिस इसमें नहीं करना होता है। इस चैप्टर का पार्ट एलिमेंटल एनालिसिस जो है वो जनरली नहीं होता है, मतलब अभी नहीं होता है, थोड़ी देर बाद होएगा। ठीक है, मतलब स्टोइचियोमेट्री जब चालू करूंगा ना, then it will become part of the elemental analysis. Elemental analysis will automatically become part of this chapter. अभी के लिए elemental analysis is something which I am not going to look into. स्टोइचियोमेट्री के टाइम पर कुछ कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल्स में उसको समझा दूंगा। वैसे it will become an integral part of this syllabus once we are dealing into practical chemistry। ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बेसिकली एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, फास्फोरस, इनको एनालाइज करना होता है, इनके परसेंटेजेस निकालने होते हैं। सिमिलरली मेटल्स के परसेंटेजेस निकालने होते हैं, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना होता है। तो ये सबकी एनालिसिस जो होती है दैट इज कॉल्ड एलिमेंटल एनालिसिस। हाउएवर हमारे लिए अभी जो हम यूज करेंगे वो हमको रिजल्ट्स ऑफ elemental analysis process, elemental analysis process. This will be our input. The results of elemental analysis process is our input. इसके बेसिस पर हमको आगे की चीजें करनी होती हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन कैसे दिया होगा हमको, एनालाइज करके हमको पता चला कि हाइड्रोजन जो है ये 20% है किसी कंपाउंड में, कार्बन जो है वो मे बी 16% है, एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, अब फाइंड द सिंपलेस्ट रेशियो या एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो हाइड्रोजन अगर 20% है, कार्बन 16% है, तो ये हो जाएगा कितना, 64%, राइट। और अगर 100 ग्राम मैं सब्सटेंस का लेता हूं तो उसमें 20 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन, 16 ग्राम हो जाएगा कार्बन, और ऑक्सीजन कितना रहेगा, 64 ग्राम। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो इट विल बिकम 20/1। एक सेकेंड रुक जाओ, हेलो, Yes, sir. let us proceed. So hydrogen, out of 100 gram, hydrogen is 20 gram and carbon is 16 gram and oxygen is 54 gram, 64 gram। 5, 4 और 16 और ये किसका किसका काउंट निकाला आपने? So this is going to be 20, this सर will इसको be सिंपलेस्ट, हाँ 16/12 is 1.25 and 64/16 करेंगे, this will become 5। Is it okay? And this is giving us, ये जो मॉलिक्यूलर वेट से इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड किया,
this is giving us the number of atoms, isn't it? सर ये कैसे आया? कौन सा? सर ये नंबर ऑफ मोल्स। हाँ देखो 100 ग्राम अगर मैंने टोटल सब्सटेंस लिया है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? अगर वो 20% है तो उसका वेट कितना रहेगा? 20 रहेगा, रहेगा ना? हाँ सर। ओके। और कार्बन का वेट कितना रहेगा? अगर ये 16% कार्बन है तो कार्बन का वेट क्या रहेगा? 16 ग्राम। 16 ग्राम। और ऑक्सीजन का वेट कितना रहेगा? 64 रहेगा। अब इनके वेट को अगर मैं इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दूं तो व्हाट विल आई गेट? वेट को एटॉमिक वेट से डिवाइड किया तो हमको क्या मिलेगा? हाँ सर, हाँ समझा। समझा? हाँ वेरी गुड। बट अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, वेट करो, ये टेबल की ड्राइंग कंप्लीट कर लेने दो, फिर मैं अगली चीज बताता हूँ। अब देखिए इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1.25। 1.25। तो हम इन सारे नंबर्स को 1.25 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, 20 डिवाइडेड बाय 1.25, 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25 एंड 4 डिवाइडेड बाय 1.25। नंबर्स क्या आया? ये 1 आ गया, ये कितना आएगा? दिस इज 5/4, 4 ऊपर गया, 16 हो जाएगा, and this is going to be 16/4, 16/5, that is 3.2। ठीक है, so the numbers are coming out to be 3.21 and 16। अब 3.21 and 16 जो है ये simplest ratio तो है, but this is not something which is presentable क्योंकि atoms fractional form में होंगे नहीं। ठीक है, तो हम इन सारे नंबर्स को होल नंबर रेशियो में लाने के लिए we will multiply them by 5। Is it possible? It is definitely possible। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये काम ये वाला स्टेप करने के पहले डायरेक्टली यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते थे। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, तो ये सिंपलेस्ट नंबर में आ जाता, होल नंबर में आ जाता। बट ये स्टेप मेनी अ टाइम्स ना, ये वाला स्टेप करना यानी स्मॉलेस्ट नंबर से बाकी सबको डिवाइड करने से मेनी अ टाइम्स ऐसा होता है जैसे ये वाला कंपाउंड कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है। द रियलिटी इज दिस, C5H18 और O16 ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो मैंने बस ऐसे ही ले लिया था। ठीक है, रियल कंपाउंड्स में ऐसा होगा कि इस स्टेप के बाद अगर आप मतलब इस स्टेप में स्मॉलेस्ट नंबर को पिक करके और बाकी सारे नंबर्स को अगर आप डिवाइड करते हो तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट सम होल नंबर रेशियो, या होल नंबर रेशियो मान लो नहीं भी आता है ना, तो एक ऐसा नंबर मतलब ऐसे नंबर्स आएंगे जिसमें कॉमन मल्टीप्लिकेशन से यू आर गोइंग टू गेट द होल नंबर रेशियो एंड इट विल बी मच बेटर देन दिस। मतलब यहाँ पर जो रेशियो आएगा ना, यहाँ पे नंबर्स ऑफ एटम का जो रेशियो आएगा, दिस विल बी बेटर देन दीज नंबर्स। अभी क्या है कि यहाँ पर एक दो होल नंबर थे और एक डेसिमल में था। रियलिटी में ऐसा रहेगा, ये भी डेसिमल में रहेगा, ये भी मोस्टली डेसिमल में रहेगा। 3 या 4 अगर है एलिमेंट्स तो उसमें से एक रहेगा जो होल नंबर में रहेगा, बाकी सारे डेसिमल में रहेंगे। ठीक है, और फिर हमको हैंडल करना होता है, देन दिस स्टेप बिकम्स अ मैंडेटरी। अभी के लिए मैंने कुछ इस तरह के नंबर्स
जल्दी जल्दी में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक वही सिंपल नंबर्स किए हैं, और सिंपल नंबर किए हैं इसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़े से सिंपल रह गए हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेप रिडंडेंट लग रहा है, बट ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। इट इज लाइक दिस स्टेप इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट। और ये नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ना, सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो जो है H18 कार्बन 5 एंड O16, दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला EF। अच्छा, EF के सर बेसिस, हाँ बोलो ना। सर इनको अरेंज कैसे करते हैं? वो किया हुआ है वो कुछ समझा नहीं। क्या क्या, सॉरी। मतलब 3 कॉलम तो समझा मुझे कि 3 पार्ट्स का समझा, उसके बाद वाला मतलब 1.25 से क्यों डिवाइड किया इसका? क्योंकि इन चारों नंबर्स में सबसे छोटा कौन सा है? सर फिर मतलब सबसे सिर्फ छोटे से छोटा, क्यों मल्टीप्लाई? हाँ सबसे छोटा से डिवाइड क्यों किया? सिंपलेस्ट रेशियो के लिए सबसे छोटे वाले से ही डिवाइड करोगे ना। जैसे देखो, अगर यहाँ पर C4H8 लिखा हुआ है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए क्या करोगे? 4 को ही कॉमन लोगे ना, तो दिस विल बिकम C1 एंड H2। या फिर कहीं पर ऐसा दिया हो C4.5 एंड H18, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H4 होगा। यस सर, अंडरस्टूड। बात समझ में आई? इसीलिए हम लोग हाँ वहां सर। पर जो सबसे छोटा नंबर है, दीज आर एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ना, तो जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको हम डिवाइड कर दे रहे हैं, सो दैट सिंपलेस्ट मुझे नंबर रेशियो उनका मिल जाए। अब वो सिंपलेस्ट रेशियो किस फॉर्म का है? जैसे देखो यहाँ पर 3.2 आया ना, तो 0.2 अगर है तो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट अ होल नंबर। इज इट ओके? यहाँ पर 0.2 ना हो सर के, हाँ बोलो ना। सर अभी आपने ये फाइनली ये करके H80 और C5 और O16 आया, तो हाँ, आपने इसको अरेंज कैसे किया? मतलब नहीं अरेंज नहीं C5 करना पहले है, अरेंज करना ही नहीं है, अरेंज का लफड़ा नहीं लेना है हम लोग को, दैट हैज नो सेंस। ठीक है, अगर कहीं H80 C5O16 लिखा हुआ है और दूसरी जगह पर C5H80 एंड O16 लिखा हुआ है, या फिर तीसरी जगह पर C5O16 एंड H80 लिखा हुआ है, ये सारे के सारे इक्वली सही आंसर हैं। ठीक है, these all are equally correct empirical formulas, equally correct, understood? yes, sir. All of you? सर तो Yes, लास्ट sir. में जो आया मेरे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना सबसे। कौन, ये वाला ना? हाँ हाँ, हाँ। यही तो सिंपलेस्ट है, इसके अलावा और कोई होल नंबर रेशियो तुमको लगता है इसमें बना सकते हो क्या? हाँ नहीं। कैन यू टेक एनीथिंग कॉमन आउट ऑफ देम? नो, वी कैन नॉट। ठीक है, ओके। हाँ, मैं कुछ और चीजें समझा रहा था, कुछ माइन्यूट चीजें यहाँ पे समझा रहा था, इस स्टेप को ध्यान दो। ठीक है, इस स्टेप से यहाँ पर आने के लिए मैंने क्या किया? डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? सो दैट 3.2 जो है वो एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो कहीं पर भी अगर नंबर्स ऐसे आए जिसमें डेसिमल में 0.2 आ जा रहा है कहीं पर, तो हम लोग
इमीडिएटली क्या पिक करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना पिक करेंगे। इज इट ओके? सर अगर 0.3 या फिर कोई भी ऑड नंबर आ जाए तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? नहीं, रुक जाओ, अभी मैं बता रहा हूँ, मैं पहले पूरा बता लेता हूँ। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज एंड देन यू विल कम इनटू कि अब क्या करूं सर अगर ऐसा और कुछ उठपटांग आया। ठीक है, डायरेक्टली 10 नहीं, अभी देयर आर मल्टीपल थिंग्स। 0.2 के बदले अगर समझो कहीं पर 0.25, जैसे यहाँ पर 0.25 आया था तो मैंने चूज किया 4 से मल्टीप्लाई करके मैं कर लूं, वी आर स्टिल गेटिंग द सेम नंबर। तो कहीं पर भी 0.25 डेसिमल में अगर आता है तो द मल्टीप्लायर टू बी यूज्ड इज 4। 0.5 आएगा तो मल्टीप्लायर इज 2। अगर 0.75 आता है तो फिर से मल्टीप्लायर 4 लेंगे। ठीक है, 0.33 कहीं पर आता है या 0.66 कहीं पर आता है, इस केस में 3 और इस केस में भी 3 लेंगे। इज इट ओके? यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई? इसमें तो भी पॉइंट में आ रहा है ना आंसर? क्या क्या? इसमें इस सिचुएशन में भी पॉइंट में आ रहा है ना आंसर? हाँ, पॉइंट में आ रहा है बट इट इज गोइंग टू बी 0.99 ना, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, और यह इस केस में भी 0.99 के आसपास रहेगा या 1.98 हो जाएगा। दिस विल ट्रांसलेट इटसेल्फ टू 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको रेशियो में 0.33 ही मिल जाए या 0.66 मिल जाए या 67 मिल जाए। इट मे हैपन 0.33 के बदले में 0.31 मिल रहा हो या 33 के बदले में 0.35 मिल रहा हो। ठीक है, तो 31 से 35 के बीच में के रेंज में कुछ भी मिलेगा, द मल्टीप्लायर इज गोइंग टू बी 3 ओनली। ठीक है, सिमिलरली इधर भी रेंज डिफाइन कर लोगे, 0.65 से लेकर के 69 तक अगर कुछ भी मिलेगा तो द मल्टीप्लायर इज गोइंग टू बी 3 ओनली। इज इट ओके? ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि दे विल राउंड ऑफ टू दिस नंबर। ये पॉइंट क्लियर हुआ? एंड सेम इज ट्रू विथ यहां पर भी वेरिएशंस, 0.2 डेसिमल्स जो है 0.02 डेसिमल प्लस माइनस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अप्लाइड रहेगा। ओके, अब इसके बाद में कुछ एक और नंबर्स हैं, जैसे मान लो 0.16 कहीं पर आ गया या 17 आ गया। ठीक है, तो द मल्टीप्लायर इज 6। ये हमको होल नंबर में कन्वर्ट करके देगा, 1.02 रहेगा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, हेलो हेलो। Yes, sir. अब Yes. इसके बाद के कोई भी नंबर्स रहते हैं, कुछ और ऑकवर्ड डेसिमल नंबर्स अगर रह जाते हैं, तब क्या करोगे? तो तब हमारा ये टारगेट होता है कि जैसे अगर ये 18 अगर आ गया, 3.18 आता, तो 3.18 को हम 18 में नहीं छोड़ते, या तो उसको सुटेबली 17 पर लेकर के 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, या फिर 3.2 से ले जाकर के इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते। और दोनों ही में, दोनों मल्टीप्लिकेशन में हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं किससे मैच कर रहे हैं हमारे ऑप्शंस। ठीक है, ये दोनों ही पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इसके। एम आई मेकिंग सेंस? बट सर लेकिन आफ्टर मल्टीप्लाइंग 10 और एनी नंबर सो वी कैन आफ्टर मतलब जो प्रोडक्ट आएगा उसका भी तो हम लोग एक फैक्टर निकाल सकते हैं ना, और फिर उसको लीस्ट काउंट में करके हम लोग उसको मतलब जो भी उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा उसको लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। वो अब वो तुम्हारा चीज जो है वो मतलब जहां पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है वहां उसके लिए वैलिड रहेगा, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स अगर हैं तो फिर तुमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ ठीक है, सर। ठीक है।
So that is also going Yes. to work. That is also going to work, no doubt. So either you can do that, or while practicing problems, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कि आप यूज करके you can make things work for you. ठीक है. और वैसे भी ये सिंपल, ये जो कैलकुलेशन के मेथड्स बता रहा हूँ, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड्स होते हैं जो हर टाइम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करने होते हैं. हर टाइम मतलब एवरी टाइम यू आर डूइंग अ कैलकुलेशन और ऐसे कुछ नंबर्स आते हैं ऊपर में, तो हम फिर इसको इमीडिएटली रेशनलाइज कर लेते हैं. मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये एक प्रॉपर नंबर में ये, या फिर नीचे में अगर आ रहा है तो मैं तो लाइक इसी तरीके से चीजें करने की कोशिश करता हूँ. चीजें जनरली सॉल्व हो जाती हैं, थोड़ा फास्ट हो जाता है. एनीवे, नेवरदलेस यू कैन चूज योर मेथड. ओके, ये मेरे मेथड्स हुआ करते थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ. यू डोंट हैव टू स्टिक टू. आपका मेथड भी सही है, कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें. दैट इज ऑल्सो विच यू कैन डू. द अल्टीमेट goal is to attain this number, the final whole number ratio. ठीक है. Understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So अभी empirical formula हो गया हमारा. Let us go to one or two problems. Let us take one or two problems and then here we go. ये क्वेश्चन दिख रहा है हम लोगों को. Yes, sir. Can we solve this?